Hello everyone. In the chemical engineering in diploma semester number 6, uh, on which one of them offered subject is that fertilizer technology. तो आपके 6 सेमेस्टर के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर से ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी एंड दी कोर्स कोड है 3360501. ओके, तो ये फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट को हम डिटेल से स्टडी करेंगे और related fertilizers technology, what are the experiment, also we perform the experimental detail. Okay, so it is an important topic, or we can say that the important subject for the chemical engineer. So basically આ જે સબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું કે આ જે સબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટની અંદર કેટલા ચેપ્ટર્સ છે, બરાબર, અને ટીચિંગ સ્કીમ શું છે, કેટલા પ્રેક્ટિકલ સેશન આવે છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ તો આ જે ફર્ટિલાઇઝર ટેકનોલોજી છે તો એના પરથી આપણને ખબર પડે છે કે આ જે સબ્જેક્ટ છે એ ટોટલી ફર્ટિલાઇઝર રિલેટેડ સબ્જેક્ટ છે, જેના અંદર આપણે જે મેઇન કમ્પોનન્ટ છે ફર્ટિલાઇઝરના એનકેપી, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और બીજું એ કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર છે એના માટે ખૂબ જ અગત્યનું વસ્તુ છે ફર્ટિલાઇઝર, જેની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના ફર્ટિલાઇઝર્સ હોય છે. અમુક ફર્ટિલાઇઝર નેચરલ હોય છે કે જે અમુક ફર્ટિલાઇઝર હોય છે એને બનાવવામાં આવે છે, સિન્થેસાઇઝ કરવામાં આવે છે. સો એ બધા જેટલા પણ ફર્ટિલાઇઝર છે એના વિશે પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું, એના વિશે સ્ટડી કરીશું, બરાબર. જેમ કે એમાંથી જે ખૂબ જ અગત્યના હોય છે એમના ફ્લો ડાયાગ્રામ, પ્રોસેસ છે, એમની ટ્રીટમેન્ટ છે, કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે એની પ્રોસેસ પણ જોઈશું આપણે, બરાબર. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફેરિક, પોટાશ, કોમ્પ્લેક્સ ફર્ટિલાઇઝર, બાયો ફર્ટિલાઇઝર. ઓકે, તો આના વિશે આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલાં ટીચિંગ સ્કીમ. તો આ જે સબ્જેક્ટ છે એની અંદર ટીચિંગ સ્કીમ પ્રમાણે એના અંદર 4 લેક્ચર હોય છે વીકની અંદર અને 2 પ્રેક્ટિકલ સેશન હોય છે, બરાબર. તો ત્રણેયને મળાવીને, એટલે કે બંનેને મળાવી અને તમારું જે લેક્ચરની જે સબ્જેક્ટ ક્રેડિટ છે એ છે 6. એટલે 6 ક્રેડિટનો આ સબ્જેક્ટ છે, ખૂબ જ અગત્યનો અને એક્ઝિસ્ટિંગ માર્ક્સ સાથે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ સબ્જેક્ટની અંદર 70 માર્ક્સનું જીટીયુ ક્વેશ્ચન પેપર, એટલે કે થિયોરી માર્ક્સ છે. 30 માર્ક્સ ઇટ ઇઝ યોર મિડ સેમેસ્ટર માર્ક્સ, એન્ડ બાકીના જે માર્ક્સ 50 માર્ક્સ છે એ તમારા વાઇવા અને સબમિશન વાઇવાના માર્ક્સ રહેશે 50 માર્ક્સ, બરાબર. સો ઇન ધીસ subject you have to attend also for the external vivas, and if external viva also play important role to complete your total marks. okay, like 150 marks तो उसके अंदर काउंट होते हैं. नाउ बात करेंगे हम इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है, तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र है, कौन कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी चाहिए, कौन से एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट किए गए हैं और कौन सी बुक हमको रेफ़र करनी है. सो सबसे पहला जो चैप्टर है कोर्स के लिए हम ओवरव्यू देख लेते हैं. तो क्या है बेसिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
and the unit number 1 is a overview of fertilizer. ओके, तो इसके अंदर क्या है, टॉपिक सब टॉपिक, तो ओवरव्यू देखेंगे फर्टिलाइज़र क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्टिलाइज़र इन द प्लांट और द एलिमेंट्स. इसके अंदर देखेंगे व्हाट आर द सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ दैट माइक्रो एलिमेंट क्या है एंड मैक्रो एलिमेंट क्या है, तो ये डिफरेंस भी हम देखेंगे. देन application, various application regarding crop balance and type of crop and fertilizer. Okay, now the next chapter is that nitrogenous fertilizer. નાઇટ્રોજનિયસ ફર્ટિલાઇઝર એટલે કે આ જે સેકન્ડ ચેપ્ટર છે એ સેકન્ડ ચેપ્ટરની અંદર આપણે જોઈશું કે નાઇટ્રોજન કન્ટેન્ટવાળા જેટલા પણ નાઇટ્રોજન કન્ટેન્ટવાળા જેટલા પણ ફર્ટિલાઇઝર છે એના વિશે આપણે જોઈશું. પહેલાં તો સૌથી પહેલાં અમોનિયા જોઈશું, એમોનિયાની ફિઝિકલ કેમિકલ પ્રોપર્ટી જોઈશું, એની એપ્લિકેશન જોઈશું. ધેન પછીથી આપણે જોઈશું સિન્થેસિસ ગેસ બાય કેટેલિટિક, પાર્શિયલ ઓક્સિડેશન સ્ટીમ, હાઇડ્રોકાર્બન રિફોર્મિંગ. ઓકે, પછી જોઈશું એમોનિયા કન્વર્ટર્સ, સિંગલ બેડ એન્ડ મલ્ટી બેડ કન્વર્ટર્સ. પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ જોઈશું પ્રોસેસ, એમોનિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, તો એમોનિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર નાઇટ્રોજન કન્ટેન્ટ હોય છે, બરાબર. તો એ જે કન્ટેન્ટ હોય છે એમાંનું એક છે એમોનિયા. તો એમોનિયા બનાવવાની આપણે પ્રોસેસ જોઈશું, જે વિવિધ પ્રોસેસીસ, જેમ કે એમોનિયા બનાવવા માટેની લિન્ડે પ્રોસેસ છે, કેલોગ પ્રોસેસ છે, હેલ્ડર એન્ડ ટોપ્સ પ્રોસેસ છે. ઓકે, ધેન બીજું છે કે એમોનિયાને સ્ટોર કરવું કઈ રીતે અને એમોનિયાનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કઈ રીતે કરીશું. સો એ પોઈન્ટ વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. ધેન નેક્સ્ટ નાઇટ્રિક એસિડ શું છે, હાઉ ઇટ કેન બી મેડ by the manufacturing process as well as the chemical property, physical property, application, all these things we discuss here. और उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है. ओके, एंड इंटरमीडिएट प्रेशर क्या है फॉर द एमोनिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है. और मैग्नीज ये जो नाइट्रिक एसिड है उसे यूजिंग दिस MgNO3 ट्वाइस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट होगा हमारा यूरिया. तो यूरिया क्या है, ऑल दिस थिंग्स लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. तो इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस है. यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसके अंदर है CO2 स्ट्रिपिंग प्रोसेस है, टेमिकार्बन्स की जो CO2 स्ट्रिपिंग प्रोसेस है, फॉर देन मोंटेकेटिनी सॉल्यूशन रिसाइकल प्रोसेस है, उसे हम टोयोकोटासुरो प्रोसेस भी बोलते हैं. ठीक है. देन आफ्टर एमोनियम नाइट्रेट, तो उसे कैसे बनाया जा सकता है, लाइक प्रिलिंग प्रोसेस है, फिर एमोनियम सल्फेट है, फिर कार्बोनेट है, एमोनियम एंड जिप्सम में से है, एमोनियम क्लोराइड में से है, और एमोनियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड में से भी बनाया जा सकता है. तो ये सारी फ्लो शीट हमें रिमेंबर करनी होगी. ओके,
थर्ड कंटेंट, हाँ, दैट इज मीन्स कि जो फॉस्फोरिक कंटेंट होगा वो रहेगा हमारा यूनिट नंबर 3, विच इज़ अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर. सो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे, और जो इसका वेट प्रोसेस है वो भी हम देखेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है यूजिंग बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस उसे भी हम देखेंगे. नेक्स्ट वन इज दैट potassic fertilizer, physical chemical properties and of potassium chloride, okay, then potassium sulfate, potassium nitrate. तो ये सारी चीज़ें इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अ कंटेनिंग ऑफ पोटेशियम. सो इसका हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे. So manufacturing of potassium chloride and sylvinite. ओके, तो ये भी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट, और ये नेक्स्ट 5वां जो चैप्टर रहेगा वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है और जो बायो फर्टिलाइज़र है, और जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है उसे हम यहाँ पे देखेंगे. सो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र एंड बायो फर्टिलाइज़र, सो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनपीके मीन्स के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे. अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट ASP, then CN, that is calcium ammonium nitrate. It is also biofertilizers, okay. Then so नहीं, it is a complex fertilizers, okay. Now 6th one is that biofertilizer. So which are the types of biofertilizer? देन बायोफर्टिलाइज़र के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, फॉस्फोरस फिक्सिंग है और पोटेशियम फिक्सिंग है उसे हम देखेंगे, और बायोफर्टिलाइज़र्स का हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे, ओके. और जो टीचिंग हावर के हिसाब से टोटल थ्योरी मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से होता है. तो पहला जो यूनिट नंबर 1 है, ओके, विच इज़ 8 मार्क्स कंटेनिंग 8 मार्क्स, और जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है उसमें से मोस्टली 21 मार्क्स का कंटेंट उसमें से ही आता है, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है थर्ड चैप्टर वो होगा 12 मार्क्स का, फोर्थ चैप्टर होगा वो 11 मार्क्स का, और फिफ्थ चैप्टर वो 18 मार्क्स. तो ये जो चैप्टर है सेकंड एंड फिफ्थ, जिसका अंदर उसका वेटेज मैक्सिमम वेटेज है, ओके. नाउ द अदर पार्ट इज़ दैट प्रैक्टिकल सेशन. तो बाय द GTU it is referred many प्रैक्टिकल और सेशंस, ओके. तो इसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा चार्ट फॉर द फर्टिलाइज़र क्लासिफिकेशन का विथ केमिकल फार्मूला एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट, ओके. तो ये पेपर चार्ट बनाएंगे हम जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा. फिर हम एस्टिमेट करेंगे न्यूट्रिएंट कंटेंट को, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड. तो ये डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट है उसे हम काउंट करेंगे,
केमिकल फॉर्मूला के साथ। फिर परसेंटेज नाइट्रोजन का अलग अलग प्रोसेस के साथ करेंगे, एमोनियम क्लोराइड के साथ, सल्फेट के साथ। ओके, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। फिर डीएपी, नाइट्रोजन इन डीएपी, तो ये सब प्रोसेस दिया है। ओके, नाउ सजेस्ट बुक बाय द जीटी इज दैट ड्राइडन्स केमिकल टेक्नोलॉजी, आउटलाइंस ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये जो बुक है उसे यूज़ करेंगे। और हम यूज़ कर सकते हैं सीव्स केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, ओके, जो मैग्रोहिल का है। और ये जो एम गोपाल राव का जो है, बराबर, वो बेस्ट रहेगा। तो हम ये 2 बुक रिफ़र करने वाले हैं। ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we are discussing, from the next lecture we are starting our unit number 1st, okay, introduction.